Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and let's get started. So the last lecture was an introductory lecture for the chapter जिसका नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज. आई टोल्ड यू, चिंता मत कीजिए कि सर ये 7th आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि कोई ऑर्डर में तुम्हें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 9 हो चुका है, तो इसके लिए द ऑर्डर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी गुड in your board examinations, that is what is being catered to. Now, last time, besides a lot of talk, what did I explain to you? What is a bill of exchange? Before that, I explained to you कि बाजार क्या होता है. Well, marketplace, where there is a seller and a buyer जो आमने सामने आते हैं और डिस्कशन होता है. At the end, एक हैप्पी प्राइस डिसाइड होता है, हैप्पी प्राइस, और उस पर लेन देन होता है. दुकानदार कुछ बेचता है और कस्टमर आके कुछ खरीदता है. नॉर्मली उसका पेमेंट तभी की तभी हो जाता है, कैश पेमेंट. कैश पेमेंट अगर दुकानदार को उसी वक्त मिल गया तो उसकी खुशी की कोई लेवल ही नहीं है. इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मेहनत की उसने और उसको पैसे मिल गए. बट देन दुनिया हमारी ऐसी है कि वो जो संतुष्टि प्राप्त होती है, काम करो और पैसा मिलो, वो आजकल थोड़ा कम ही होता है, मतलब लेट होता है. ऐसे क्यों है? वेल, क्वाइट सिंपल, क्योंकि लोग कस्टमर उधारी मांगते हैं. तो जब कस्टमर उधारी मांगता है, कस्टमर के चेहरे पे तो स्माइल आता होगा, बट नॉट दुकानदार के चेहरे पे. दुकानदार को वो मे बी नॉट वेरी हैप्पीली, बट कस्टमर को उधारी, दैट इज टाइम, महूलत देनी पड़ती है. ओके, एंड इट्स नॉट जियोग्राफिकली जस्ट वन प्लेस. ओके, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया. नो, क्रेडिट गोज ऑन all throughout the world. In fact, let me be very, very blunt and straight to you. If every transaction in the world happens on today basis, what is today basis? Cash basis, पैसे अभी. Okay, then the thing is what, no? to a big extent, accountants learning the subject of accountancy, practicing accountancy, solving accountancy may not be required. Yes, क्यों? अरे प्रोडक्ट बेचा, पैसा आ गया, कुछ रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है.
मैक्सिमम रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन के रहते हैं। क्यों? पैसा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद आने वाला है। सो फॉर दैट रिकॉर्डिंग हैज़ टू बी डन। सो ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स, ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस जो स्मार्टफोन पे, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, दे हैव अ वेरी लिटिल पार्ट of what cash transaction, but they have a major part and lots of details connected to what credit transaction. Okay, right now very quickly to take you back in the chapter के चैप्टर में क्या हो रहा है, 2 लोग हैं, 2 अलग अलग जगह से है। Let me put a picture and then I will come back to the first question for the day. Okay, now what do I mean by द पिक्चर? देखो 2 लोग हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। वो 2 लोगों का नाम कुछ इस प्रकार है। उस तरफ पे है मिस्टर प्रकाश राव, वो है सेलर। इस तरफ पे है जो अपने ना शॉपिंग बास्केट लेके रेडी है, तो ऑब्वियसली वो बायर है। इनका नाम है राहुल देव। प्रकाश राव जी पुणे से है, राहुल देव जलगांव से। थोड़ा आपको एक ज्योग्राफी का आइडिया देने के लिए पुट अप फोटोग्राफ्स। दैट इज पुणे, सम स्ट्रीट ऑफ पुणे, दिस इज जलगांव स्टेशन। ओके, मेरे को स्ट्रीट नहीं मिल पाया तो चलो स्टेशन तो मिल ही गया। इन दोनों के बीच में काफ़ी विचार विमर्श के बाद, कन्वर्सेशन के बाद, डायलॉगबाजी के बाद में एक डिसीजन लिया जाएगा कि मेरे को ये खरीदना है। दुकानदार बोलेगा मुझको ये बेचना है इतने में। ओके, तभी के तभी इफ द पेमेंट इज डन फाइन, बट अगर राहुल देव अबाउ कस्टमर बायर सेज नो आई कांट पे राइट नाउ, अभी नहीं पैसे दे सकता। ओके, अपना थोड़ा बिजनेस का पैसे में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ना थोड़ा 1 महीने के बाद में सेटल हो जाएगा, तो कैन यू गिव मी सम टाइम। अगेन प्रकाश राव चाहे तो कैन टेल राहुल देव ऊपर फुट जा, देख राहुल देव फुट जाएगा, चला जाएगा, बिकॉज राहुल देव एज अ कस्टमर विल गेट मेनी सप्लायर्स, मेनी शॉपकीपर्स, बट ऑब्वियसली प्रकाश राव को राहुल देव एक कस्टमर को फुट बोलने के जगह पे नुकसान काफी होगा। नॉट जस्ट राहुल देव का डील, राहुल देव विल हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, a Facebook group. Nowadays everybody is connected to a group. Okay, nowadays like me, so many people have YouTube platforms, community, thousands and lakhs of people. एक पोस्ट डाल देने का कि वो प्रकाश राव के पास जाने का ही नहीं, क्यों? वो बहुत खड़ूस है। अभी ऑब्वियसली भी खड़ूस के अलावा अगर तुम उसमें 5 और वर्ब्स, प्रोनाउंस, नाउन्स डाल दो तो उसका नाम तो एकदम हिट हो जाएगा, बट नॉट गुडविल, बैडविल के लिए पीपल विल नॉट गो। सो व्हाट विल प्रकाश राव टेल राहुल देव? सर नो प्रॉब्लम्स, आप उधारी पे माल लेके जाओ, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, उसके आधारित सेक्शन 5 जो है, मैं उसके हेल्प से वो डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। ओके, वो डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा जाएगा वो सब होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसको मैं रिपीट करता हूं 2018 में अमेंड किया गया, उसका एक नया वर्जन निकाला गया। ओके, बिकॉज नाउअडेज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इवन चेक, यूज ऑफ दैट बहुत कम हो रहा है, एंड डिजिटल मनी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो बढ़ रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली चेंजेस हैड टू बी बॉट एज फार एज द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वर कंसर्न। ओके, सो द सेलर विल टेल सर ये जो बिल है ये मैं बना देता हूँ, इसमें मैं सब लिख दूंगा, मेरा नाम, एड्रेस, आपका नाम, एड्रेस, हमारे बीच में जो डील हुआ है, जो तय हुआ है, जो अमाउंट, डेट, मैं सब लिख दूंगा, मैं आपको दूंगा, आप पढ़ लेना और आप क्या कर लेना, साइन, उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, साइन करके मेरे को दे दो, तो मेरे पास वो प्रूफ रहेगा। तो क्या है ना सर, थोड़ा मेरे को शांति रहेगा। ओके, और वो जो पेपर है वो पेपर नहीं होगा,
वो आपके साइन के पहले ड्राफ्ट होता है, आपके साइन के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा ना. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई इज इट कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज इट्स अ बिल, इट्स अ डॉक्यूमेंट. एंड आफ्टर 1-2 months, क्योंकि हर बिल का एक टाइम होता है, वो टाइम खत्म होने के बाद में ओके ऑटोमेटिकली दिस बिल विल बी टेकन बाय द seller to the buyer, drawer to the drawee, same people. It will be presented, it will be shown. तो if this शक्ल is of the seller, मैं ये शक्ल लेके और ये पेपर लेके बिल ऑफ एक्सचेंज में जाऊंगा बायर के पास. वेरी सिंपल, मैं ये दिखाऊंगा, सर देखो. ओके जैसे ही वो देखेगा उसको सब, मतलब मेरे को कुछ डायलॉग बोलने का जरूरत नहीं, सब उसको दिखेगा. ओ अच्छा अच्छा अच्छा, 1 महीना खत्म, 2 महीना खत्म, 30 दिन खत्म, 40 दिन खत्म, पेमेंट करना पड़ेगा. यस, अगर वो पेमेंट करेगा, अगर तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो स्टोरी आगे जा सकती है. राइट नाउ विल नॉट गेट इनटू दैट. वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग कि आज कल क्या होगा वो बात अलग है. आज ड्रॉवर मतलब सेलर ये डॉक्यूमेंट को रेडी कैसे करता है, व्हाट डज ही राइट हियर एंड देयर. ऑल ऑफ यू आपके नोटबुक में लेफ्ट पेज, राइट पेज, एनी पेज, okay, you can start to solve this with me. All the questions are directly from the textbook. Which one am I solving today and tomorrow and day after tomorrow? Okay, lecture के title में उसको mention किया है, so you can obviously have a look at that. Okay, right now how does this actually look? Well, something like this. Right above it has a stamp. Stamp में मेरे को क्या लिखना है? कुछ नहीं, stamp लिखना है, word stamp. वो स्टैम्प का वैल्यू अलग अलग होता है. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है ये बिल के वैल्यू पर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के वैल्यू पर. ये बिल ऑफ एक्सचेंज सस्ता भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर आप एक घर खरीदते हो महाराष्ट्र में एग्जाम्पल, तो आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है. सबको सेम स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, थोड़ा जबान लड़खड़ाए. ओके नहीं, जो कम वैल्यू का घर खरीदता है, ओके नॉट गम का, घर का, ओके वैल्यू का, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका स्टैम्प ड्यूटी कम रहता है. जो बड़ा महल खरीदता है, अ बिग हाउस, मोर रूम्स, ओके अ बंगलो, उसका स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा. सो द स्टैम्प ड्यूटी कीप्स ऑन चेंजिंग. यू जस्ट हैव टू राइट द वर्ड स्टैम्प. उसके नीचे के डिब्बे में आपको अमाउंट लिखना है, 10,000, 20,000 इन डिजिट्स, न्यूमरल्स. At the right side end आप हो सेलर, आपका नाम एंड एड्रेस, जिस दिन पे आपने बिल बनाया, डेट ऑफ बिल. ओके देन दिस पैराग्राफ. नाउ फ्रॉम दी जो डेट ऑफ बिल है ना, यू कैन लीव मे बी 3 lines एंड देन स्टार्ट दिस पैराग्राफ. क्योंकि क्या है ना, कोशिश करो कि पूरा पेज आप यूज करो ताकि वो नीट लगे, नीट दिखे. बिकॉज इफ आई आस्क यू बच्चों, students, are you going to do maths here? No, thenga, not like thenga, because there is no maths. Are you going to do accounts here? Double thenga. क्यों? क्योंकि इसमें accounts भी नहीं है. Then why are you going to get marks? 5 marks. Presentation. तो भाई presentation बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा होना चाहिए. Okay. Then in the paragraph आप लिखोगे, अगर 1 month है, 1 month after date. अगर 40 days है, 40 days after date, whatever it is. पे, दुकानदार कस्टमर को बोल रहा है पे मी, मेरे को दो. और माई ऑर्डर, या तो मैं ऑर्डर करूंगा, ओके या तो मुझको दो या तो माई ऑर्डर. द सम ऑफ रुपीज, अगर 4,000 है, 4,000 ओनली इन वर्ड्स फॉर द वैल्यू रिसीव. नाउ व्हाट डज दिस मीन? आई एम टेलिंग द कस्टमर, द बायर, द ड्रॉई, मैंने तो 2, 3, 4, 5 हज़ार का वैल्यू का सामान दे दिया आपको, अभी आप मेरे को पैसे दे दो. अच्छा, फिर ये हुआ जो सेलर है उसका साइन. फिर लेफ्ट में बायर का नेम एंड एड्रेस, एंड ये पूरा काम सेलर का, ड्रॉवर का. इसके बाद में ये पेपर, मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो अभी तक ड्राफ्ट है, it will be given to the whom? The buyer.
बायर मे बी कुरियर से, अगर या तो हैंड डिलीवरी, द बायर विल रीड ऑल ऑफ दिस वेरी केयरफुली. ही विल रीड इधर अमाउंट बराबर है, इधर टाइम बराबर है, बिकॉज यू सी गलती से या जानबूझकर देयर कैन बी चेंजेस. मे बी बायर बोलेगा मैंने तो अग्री नहीं किया था, मेरे को तो इतना रुपीस बोला था, इतना डिस्काउंट बोला था, इधर तो दिखता नहीं है. हाँ, तो ऑब्वियसली ना बायर चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं. ही विल पुट टर्म्स एंड कंडीशंस, बोलेगा नहीं ऐसा होगा तो साइन करूंगा, वैसा होगा तो एक्सेप्ट करूंगा. हाँ, इफ एवरीथिंग इज ओके ही विल साइन. एक्सेप्टेड, साइंड, उसका नाम एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. डेट ऑफ बिल आज का हो सकता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इफ दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट. ओके, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, इन द सोसाइटी दैट आई स्टे, इन अ बिल्डिंग दैट आई स्टे, कभी कभी हमको लीगल नोटिस आता है, लीगल नोटिस, बराबर. तो हम लेके उसको ओपन करके पढ़ते, हमको आधा कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज मैनी अ टाइम्स द वर्डिंग्स, द जार्गन, द टर्मिनोलॉजी इज क्वाइट डिफिकल्ट. वी डोंट यूज इट व्हेन वी आर ऑन फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. हम लोग बोलते ये तो हम लोग यूज नहीं करते, हमको समझ में नहीं आता. ओके, सो सम पार्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, सो वी टेक इट टू अ लॉयर. वकील कोई रहेगा सोसाइटी में तो उसके पास लेके जाएंगे, नहीं रहेगा तो बाहर जाएंगे, पैसे देंगे और उसको बोलेंगे पढ़ के सुनाओ. हाँ, तो समटाइम्स ये एक्सेप्टेंस के पहले मे बी द बायर विल टेक दिस डॉक्यूमेंट टू अ वकील, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ही विल टेल द वकील पढ़ लो बराबर है कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, अगर सही है तो मैं साइन करके वापस से ड्रॉवर को, मतलब सेलर को देता हूँ, ताकि उसके पास में प्रूफ रहे. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड फॉर अ फ्यू लेक्चर्स टू कम. एवरी लेक्चर में थोड़ा थोड़ा वेराइटी चेंज होगा. ओके, आर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, एंड माय डियर, 2 ही क्वेश्चन है पर लेक्चर. आई हैव केप्ट ओनली 2, सो वी आर नॉट गोइंग टू हैव मैराथन लेक्चर्स. जल्दी जल्दी इन SMS टाइप शॉर्ट अपना लेक्चर्स खत्म हो जाएगा. लेट्स रीड. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ऊपर है, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द इंफॉर्मेशन. क्या ड्रॉवर कौन है? सेलर. बायर कौन है? ओके, ड्रॉई. फर्स्ट लाइन, मिस्टर प्रकाश राव, ही इज द ड्रॉवर, मतलब सेलर. 648 क्या है? मे बी उसका कोई रोड का नाम, बिल्डिंग का नंबर. कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे. पूरा नेम एड्रेस है, हमको सिर्फ ये बाद में कॉपी करना है. ड्रॉई मतलब बायर. प्लीज नोट, इन अदर वर्ड्स, इवन इन दी what you call explanation in your textbook, it has been made very clear. If I can show this to you, I am हाँ, ये मुझे कोशिश करना था. ये लाइन आप पढ़िए, ये सामने लाइन. A bill of exchange is generally drawn by a creditor. Please note, drawn, ड्रॉवर कौन होता है? वो होता है क्रेडिटर, क्योंकि उसने क्रेडिट दिया है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. तो ड्रॉवर भी वो है, क्रेडिटर भी वो है. कस्टमर कौन है? वो डेटर है. सो प्लीज नोट, ऑन हिज डेट एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर, कस्टमर. सो इफ अगर आपको कुछ अलग स्टाइल में पूछे, because many students are like, sir, when you solved, you used to write drawer, drawee, sometimes seller, buyer, we know that, but sir, when we went to the exam, they wrote dater, creditor, creditor, dater, and sir, googly. That's not a googly, it is a very straightforward, what do you call, bowling. हाँ, आपकी तैयारी थोड़ी कम थी. So अगर वो कहे ड्रॉवर, that means seller or creditor. ड्रॉई कस्टमर, बायर और डेटर. तो भाई ये अलग अलग दांत के नाम हैं
काम एक ही है, सो डोंट फॉरगेट, ड्रॉवर क्रेडिटर होता है। ओके हाँ, यहाँ पे कस्टमर कौन है? राहुल देव। ये कहाँ पे रहते हैं? 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट 44,500। तो whatever were the products that were sold and purchased, the value was 44,500. Tenure of or term 3 months। जो ड्यूरेशन है, महूलत 3 महीना दिया है। किसने? सेलर ने बायर को। ओके। डेट ऑफ बिल 3rd जून 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7th जून 2019। 4 दिन के बाद में the customer has, the drawee has signed and accepted. See, we have all the information. The only thing is, इसको हमको अच्छी तरीके से परोस के देना है। Fine. How do we start? Now, I hope आप लोगों ने आज के लिए 2 फॉर्मेट बनाए। Now, hold on, huh? Now, when you say and when I say, so format मतलब क्या? Format मतलब on one page आप ऐसे एक ब्लॉक बना दो, बड़ा सा, पूरा ऊपर से नीचे, मेक अ ब्लॉक, एंड इन दैट छोटे छोटे 2, एक स्टैम्प के लिए, एक रुपीस के लिए। ऊपर आप लिख लो स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका है। सो दिस इज अ फॉर्मेट। इतना और कुछ मत करना और कुछ मत लिखना, क्योंकि वो चेंज होगा। इतना फिक्स्ड है। हाँ, ये ग्रीन कलर ऐसा तुमको मेहंदी कलर करने का जरूरत नहीं है, बट आपके बुक में जो पूरा ब्लॉक है ना, ये पूरा बिल का, दिस ब्लॉक, सो यू डोंट गो आउटसाइड इट, उतने के अंदर आप फिट करो। इट लुक्स नीट, यू डोंट गो द एज ऑफ द पेज। नाउ हाउ टू स्टार्ट? हु इज द ड्रॉवर? बिकॉज ड्रॉ करने का तो काम उसका है। अच्छा, अपने सम में टू पुट अ पिक्चर, प्रकाश राव इज द ड्रॉवर, राहुल देव इज द ड्रॉई। तो 99% काम प्रकाश राव को करना है, हु स्टेज एट 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। ओके, तो प्रकाश अपना थोड़ा प्रकाश इस पे फैलाएगा। ही विल राइट हिज नेम एंड एड्रेस राइट अबाउट मिस्टर प्रकाश राव। उसके नीचे से इट्स लाइक लेटर राइटिंग, तो वो जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ना हर लाइन का, उसको एक सीक्वेंस में रखना। ओके, उसको स्लोप मत रखना, एक सीक्वेंस में। सो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। वेयर डज ही स्टे? 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। समवन में टेल मी कि सर आई रोड पुणे इन द 4th लाइन। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो आना चाहिए वो आया, थोड़ा थोड़ा आगे 19-20 होता है। ऑन विच डेट डिड प्रकाश राव मेक दिस? उसको कहते हैं डेट ऑफ बिल। आपके टेक्स्ट बुक में आप देख लो। ओके, मैंने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया ना। 3rd जून 2019। इसका वैल्यू क्या था? एक अमाउंट होना चाहिए 44,500 उधर डब्बे में, इन न्यूमरल्स। राइट ऑल ऑफ दिस। चलो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज द क्रक्स, द मेन पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि इट इज इन द सेंटर। ओके, प्रकाश राव इज टेलिंग राहुल देव, क्या? राहुल देव पावणे 3 महिन्यानंतर। थोड़ा थोड़ा मेरे को मराठी आता है, मैं कभी कभी बीच में बोल देगा। हाँ, सो इट्स अ पैराग्राफ। आप एक 3 लाइन खाली रखो तो क्या ना, नीट लगता है। एंड देन ये पैराग्राफ की शुरुआत होगी। राइट नाउ नो, मैं राइट कर रहा हूं, यू डोंट डू लाइक दिस। ओके, एंड देन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैं उसको फिल अप करूंगा, बट तुम जैसे मैं राइटिंग स्टार्ट करूं, तुम राइटिंग स्टार्ट करो। सो इन अ पैराग्राफ मेरे लिए 3 लाइन का होगा, आपके लिए 6 लाइन का होगा, नो प्रॉब्लम। पहले आपको लिखना है टाइम फैक्टर, उसको कहते हैं क्रेडिट पीरियड, 3 months। इन वर्डिंग्स ट्राई योर बेस्ट कि ये जो पैराग्राफ है इसमें एवरीथिंग इज इन वर्डिंग्स। ओके, 3 months। प्रकाश टेलिंग राहुल,
3 महीना याद रख, आफ्टर डेट, व्हाट डेट, देख ऊपर 3 जून, 3 महिने बाद मी येणार पैसे घ्यायला. ओके, रेडी रखो. हाँ, सो इट्स वेरी क्लियर. प्रकाश इज टेलिंग, देख राहुल अंधियारे में मत रहे, मैं क्लियरली इस पे फ्लैश मारा है. देखो बोल रहा है 3 महीने बाद, आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ बिल 3 जून, 3 महीने बाद. कैलेंडर में लिख ले क्या, पे मी, मेरे को पैसा दे 44,500. हाँ पॉसिबल है कि मैं बिजी रहेगा, तो क्या है ना, मैं नहीं आ पाएगा, मेरे स्टाफ को मैं भेजेगा मेरा ऑर्डर लेके. मैं आएगा तो मेरे को पैसा दे, वरना मेरा स्टाफ आएगा, माय ऑर्डर, दूसरा कोई आएगा. ओके, वो मेरा ऑर्डर, हुकुम लेकर आएगा. पुराने ज़माने में होते थे ना, थोड़ी एक महाराजा दूसरे महाराजा के पास हर टाइम जाते थे, नहीं, उनका हुकुम जाता था. आगे, द सम ऑफ रुपीज व्हाट, 44,500 ओनली. ओके, लेट्स राइट 44,500 ओनली. अगर राहुल पूछेगा कशाला, अरे व्हाट कशाला आणि असाला आणि तसाला. ओके, तेरे को 44,500 का माल दिया, तू खाया पिया पचाया, हाँ अभी पैसा नहीं देने का है. हाँ, सो द कशाला का अगर वो पूछेगा तो बोलने का फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, देखो उतने कीमत का मैंने माल दिया है, सर्विसेज दिए हैं, 3 महीने बाद मुझको मेरा पैसा मांगता है. मी और माई ऑर्डर, खुद आऊँगा मेरे को पैसे देना, मेरा ऑर्डर आएगा उसको पैसे देना. नाउ हु विल साइन, प्रकाश राव, तो उसका सिग्नेचर मिस्टर प्रकाश राव, उसके ऊपर SD एंड द // मीन्स सिग्नेचर, साइन. आपको ऐसे ही करना है, आपको और कुछ करना नहीं है. ओके, साइन तो डेफिनेटली ट्राई नहीं करना. तो प्रकाश ने अपना साइन कर दिया. अभी वो बायर का नेम एंड एड्रेस लिखिएगा, टू मिस्टर राहुल देव स्टेइंग एट 236 राजापुर रोड, जलगांव. इतना काम, इतना पेन, इतना इंक किसका, प्रकाश का. अब प्रकाश बोलेगा काम हो गया, मेरा काम हो गया. बस ये सभी प्रकाश, इसके आगे और कोई प्रकाश इस पे डाल नहीं सकता. ही विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट नाउ, okay, by person, by post, by courier to Rahul, because see there are 2 different places, ऊपर है पुणे, इधर है जलगांव, थोड़ा तो टाइम जाएगा, बराबर. हाँ, he will sell it, send. Prakash, Rahul will open it, Rahul will read everything, he will check magnifying glass, बराबर. And if everything is okay, 3 months okay, 44,500 ओके 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 ओके, डेट वेट ओके, एड्रेस ओके. देन राहुल क्या बोलेगा, ओके चल भाई, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, कबूल है, एक्सेप्टिंग. तो ही विल पुट 1 लाइन अप 1 लाइन डाउन, बिकॉज नॉर्मली वो क्या होता है ना, एक स्टैम्प होता है, ऐसे स्टैम्प, फिर साइन करता है. ओके, तो हमेशा एक्सेप्टेड 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 लिखने वाला नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन लोग वही ट्रांजैक्शन हज़ारों बार रिपीट करते हैं, तो वो स्टैंप रखते. बैंक में जाओगे आप, पैसा डिपॉजिट करोगे, तो जो कैशियर होता है ना बैंक का, ठप्पा मारता है, तो एक तरीके से स्टैंप होता है. एक्सेप्टेड, वो अपना साइन करेगा, राहुल देव, और जिस दिन पे उसने साइन किया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019, दिस मच यू डू, 5 मार्क. सो सिंपल, कोई गणित नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई अकाउंटेंसी नहीं है. शॉर्ट, सिंपल एंड मैनी मोर लेक्चर्स में यही करना. यस, थोड़ा यहाँ वापस सीन चेंज होगा, बट दिस इज गोइंग टू बी 5 मार्क्स. प्लीज मेक श्योर दिस इज डन, बिकॉज नाउ मेरी गाड़ी जा रही है नेक्स्ट वाले सम की ओर. ओके, सो अगेन व्हेन आई से नेक्स्ट वाला सम, तुम्हारा फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा डब्बा. ओके, अब्बा जब्बा डब्बा. Keep it ready. I will read the question, which is, prepare a bill of exchange from the following information. Super. Drawer मतलब seller, शंकर वडोदरा गुजरात.
ओके, तो शंकर गुजरात का है, ड्रॉई मतलब बाया, विनायक सोमवार पेट पुणे, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। अमाउंट 16,000 का डील मतलब प्रोडक्ट्स मतलब सर्विसेज, 3 महीने का टाइम, 6 सितंबर को बिल बना, 11 सितंबर को वो बिल एक्सेप्ट हुआ। सो वेरी सिमिलर इंफॉर्मेशन like our first problem today. I've tried my best के whether it is solved or whether it is a practical problem, okay, objective दोनों मैंने combine करी so that थोड़ा practice हो जाता है। okay, now I'm hoping कि आप लोग ready हो। so this story जो चित्र में कुछ इस तरह दिखता है, एक बंदा वो दोदरा से, दूसरा बंदा पुणे से। you think from whose थिंकिंग शंकर, आप बोलो मैं शंकर हूं, मैं बोलूंगा किसको, विनायक को जो पुणे में रहता है। क्या बोलूंगा कि भैया देख 3 महीने बाद मेरे को मेरा पैसा चाहिए 16,000 रुपया। हाँ, लिख के बोल रहा हूं मैं। सो लिख के शंकर विल राइट हिज नेम एंड एड्रेस विच इज वडोदरा गुजरात। ओके, कब बिल बनाया शंकर ने? वेल 6 सितंबर 2019। टेक्स्ट बुक में सर शॉर्ट फॉर्म वॉज देयर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सितंबर का शॉर्ट फॉर्म आप लिखोगे। इट इज जस्ट दैट इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग द बेस्ट मार्क, डोंट गिव द एग्जामिनर एनी बहाना, द मॉडरेटर, द पेपर चेकर, एनी बहाना टू कैंसिल योर मार्क्स। कोई बहाना मत दो, नहीं उसने देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा, नहीं लिखना चाहिए था। अरे लिख दो ना पूरा, क्या जाता है। ओके, थोड़ी 1 घंटा जाएगा, मे बी अ फ्यू सेकेंड्स मोर। देन डील प्रोडक्ट गुड्स कितने के थे? 16,000, वो हो गया न्यूमरल्स में। आता काय येणार? पॅराग्राफ येणार। पॅराग्राफमध्ये आम्ही काय लिहू? शंकर इज टेलिंग द बायर, देख 3 महीने बाद मेरे को मेरा पैसा दे दे। हाँ, सो दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू राइट। सो नाउ यू स्टार्ट टू राइट। आप लोग ये पहले लिख के मत रखो, बिकॉज ऑब्वियस ना, यू डोंट नो हाउ मच ब्लैंक में तुमको फिल करना है, कभी छोटा रहेगा कभी बड़ा रहेगा। 3 months आफ्टर डेट, शंकर टेलिंग द बायर, 3 महीने बाद बॉस पे मी और माई ऑर्डर, वो मैं रहूंगा तो आ जाऊंगा पुणे तक, बाकी तो वडोदरा से पुणे ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं आ सकते, टाइम लगता है। मैं नहीं रहेगा, मैं बिजी रहूंगा तो मेरा ऑर्डर लेके कोई आ जाएगा, उसको आप पैसे दो। कितना? 16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। आपको तो हमने उतने का माल दे दिया, मैं मेरा साइन कर रहा हूं। हाँ, तो शंकर ने अपना साइन कर लिया। दिस मच वर्क वेरी सिमिलर लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन इज डन बाय शंकर। नाउ ही विल राइट, क्योंकि अगर आप कुरियर करते हो तो पोस्ट करते हो तो पोस्टमैन को तो पता होना चाहिए ना भाई, कहाँ पे जाऊं, किसके दरवाजे पे जाऊं। विनायक सोमवार पेट पुणे, तो पता चल गया उसको। ओके, पोस्ट पीपल, कुरियर पीपल आर क्वाइट गुड एट एड्रेस डिटेक्शन। ओके, इतना काम हुआ गुजरात वडोदरा में। नाउ दिस विल गो टू पुणे। पुणे में इसकी मुंह दिखाई होगी। विनायक विल रीड, 3 महीना बराबर लिखा, मी और माई 16,000, ओके सब बराबर है, चलेगा चलेगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्टैम्प एक्सेप्टेड, उसका सिग्नेचर, बिकॉज यू कैन नॉट फोर्सफुली टेक अ साइन फ्रॉम समवन, यू कैन नॉट, मतलब वो जोर जबरदस्ती गलत है। इवन जब एक FIR लॉन्च होता है, एक FIR लिखा जाता है बराबर, या एक क्रिमिनल से उसका कन्फेशन लिया जाता है, उसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है उस कन्फेशन पे, क्योंकि अदरवाइज द जज विल से पुलिस वाले आपने तो इसको दो के साइन लिया रहेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। हाँ, तो जब कोई साइन करता है एक पेपर पे, वो एग्री करता है, यस चलेगा, 3 महीने बाद में 16,000 देगा। ओके, हाँ, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर। व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम हम लोग 2 और करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएगी,
थोड़ा अपना शूटिंग अलग कैमरा एंगल से हम लोग करेंगे, को थोड़ा मसाला चेंज हो जाएगा। आई एम होपिंग दैट टुडेज लेक्चर एंड द 2 प्रॉब्लम्स दैट आई हैव डन इज completely, fully, 100% understood by you. If that is the fact and the truth, लाइक कर लो, डिसलाइक करते हो कोई तकलीफ की बात नहीं है, बट उसका रीज़न हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, अगर कोई रिक्वेस्ट है, अगर कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल की जानकारी डेफिनेटली पहुंचा दीजिए। जब तक हम अगली बार ना मिले, अपना ख्याल रखिए, छोटों का, बड़ों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, जितना हो सके स्टे इंडोर्स। ओके, आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। Good day to all of you. God bless. Ta-da.